আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোমার প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। It's very important that we give thanks to God. और जब परमेश्वर का धन्यवाद होता है तो ऊपर से ताकत उतर कर आती है। And we receive His strength when we give Him thanks. और जैसे हम लोगों ने कहा, हर हफ्ते जो प्रार्थना की वचन आएगी वो हर एक वचन कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। And as I have already said that whatever word of God will be shared will be based on different topics. आज की जो वचन है वो विशेष रूप से है, आराधना कीजिए और चंगाई और मुक्ति को पाइए। And today's word is based on worship, praise and thanksgiving. पहली चीज देखना जरूरी है, आप किसकी आराधना कर रहे हैं। It's important to see whom you are worshiping. आप जगत की आराधना करेंगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। If you worship the world, you will not get salvation. मगर आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आपको मुक्ति जरूर But मिलेगी। you will get salvation if you praise and क्योंकि glorify परमेश्वर God. आपको पाने के लिए इस दुनिया पर आया है। Because God came into this world so that He could win you. परमेश्वर आपको पाने के लिए इस दुनिया पर आया है। He came into this world to gain you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और अगर इस वचन के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको शक्ति और आशीष देंगे। And He will fill you with His strength and His blessings if you have faith on His word. प्रभु ने कहा अपने वचन में मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17 में, And in Mark chapter 2 verse 17 God says, Jesus heard them and answered, People who are well do not need a doctor, but only those who are sick. I have not come to call respectable people, but outcasts. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, न रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धार्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। And he said that people who are well do not need a doctor. He has not come to call respectable people but sinners. और वचन कहता है हम और आप सभी कोई पापी हैं। And the word says we all are sinners in this world. और इसीलिए तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए जगत को मुक्ति देने के लिए आया है। And that is why He's come onto this earth to give us यूहन्ना का salvation. सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 इसीलिए कहा गया कि ईश्वर ने दुनिया से इस तरह से प्यार किया है And that is why John chapter 3 verse 16 कि says, उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए और आपके लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ाया है, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, और जिसके द्वारा हमें और आपको पापों की मुक्ति मिल सके। so that we get redemption from our sins. प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में And Matthew chapter 1 verse 21 कि says, एक पुत्र जन्मेगी जिसका नाम यीशु रखोगे, A son will be born and you should name him Jesus. और वो सभी के पापों से सभी को उद्धार करेगा। And he will save the entire humankind from their sins. इसीलिए तो उसने रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 23 में कहा, And that is why Romans क्योंकि chapter सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। because everyone has sinned and is far away from God's saving और अगर आप presence. प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, If you have faith on the word of रोमियो God, के पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 23 में उसने कहा, according to Romans क्योंकि chapter 6 पाप का verse वेतन 23, मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। For sin pays its wage, that is death, but God's free gift is eternal life in union with Christ. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए तो प्रियजन मैं आप लोगों से कहता हूँ इस अनंत जीवन के लिए प्रभु की महिमा कीजिए। And that is why let us glorify God for His eternal life. आप शायद बहुत सारे समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, You might have so many problems in your life, आपने अपनी समस्या की समाधान के लिए रास्ता भी निकाल लिए हैं, and you perhaps might have found out a way. to मगर come मैं out of it. बोल रहा हूँ आप अंधकार में जा रहे हैं, But I'm telling you, you are still walking in darkness. क्योंकि आप जगत से प्यार करते हैं Because you love the और world. इसीलिए आप जगत के सहायता मांग रहे हैं। And that is why you seek help from the लूकस world. के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 और 39 में कहा गया है, Chapter 6 verse 37 and एक 38. अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, दोनों जाकर गड्ढे में गिर A जाएगा। blind man cannot show the way to another blind और man. अगर आप दुनिया के हाथों को पकड़कर है तो आप ईश्वर की महिमा देख नहीं And पाएंगे। if you are holding the hands of this world, then you will not be able to see the glory of
परमेश्वर of की God. महिमा देखने के लिए यीशु के हाथ को पकड़ना बहुत जरूरी You है, have to hold the hand of Jesus if you और want to see इसीलिए His तो glory. यीशु की आराधना करना बहुत And जरूरी it's है। important to worship and praise आप Him. जितनी पिता की प्रशंसा करेंगे, As long as you praise and आपकी worship God तकलीफ the उतनी ही Father, कम होती जाएगी, your problems will keep आपकी reducing. समस्या उतनी ही दूर होती And जाएगी, your problems will go far आपके away जीवन from में you. जो जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी दूर होती जाएगी, And every difficulty will be removed from you. क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे Because हैं। you're worshiping the living God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6, Joshua, the book of Joshua chapter 6. और जहां पर उन लोगों ने जाकर अटक चुका था जेरिको के दीवार के सामने में, And they had stopped right in front of the wall of Jericho. और वो लोग क्या करेंगे उन लोगों को पता नहीं है। And they didn't know what to do. और ये दीवार के सामने इसलिए वो लोग अटक गए थे, अगर 5 अध्याय देखेंगे जहां पर उन लोगों के कुछ गुनाह उन लोगों के साथ चल रहा था, Because they had so many sins in them. मगर यीशुआ ने अपने लोगों से कहा, But God Almighty said to His people. चलो हम लोग प्रभु की प्रशंसा करते हैं। Sorry, Joshua said to his people, let us praise and और उन लोगों ने glorify God. बहुत सारे चीज जो घरों में रखा रहता है, And many things that they had in their houses. और उन सभी को निकाल कर उन लोगों ने प्रशंसा करने लगे, He took out all those instruments to make noise and praise और God. वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। And they were worshipping God. और प्रभु ने उन लोगों से कहा, यीशुआ के साथ एक बार नगर की, तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। And God told them to do the same for 6 days. तुम लोग 6 दिन ऐसा ही करोगे। And go round the city making noise for 6 days. और वो लोग 6 दिन मैदे की सिंगे लगाकर बजाते जाए, जैसे ही तूरिया की जोरी की आवाज सुनाई दे, और वैसे ही सब लोग बड़े जोरों से ललकारे, और पर नगर की चारों ओर वो लोग प्रदीक्षण करने लगे। And it is written that 7 priests were carrying a trumpet, and in front of them they had the covenant box, and they were going round the city and round the city. और वो लोग ताली बजाते हुए, गाना गाते हुए, प्रशंसा करते हुए कर रहे थे। And while they were making rounds of the city, they were making noise to God by आप clapping their अपने hands and सोच से praising अपने Him. समस्या को दूर कर नहीं पाएंगे। You will not be able to take away problems from your thoughts. आप अगर सोचेंगे, सोचते सोचते आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। And if you keep thinking and pondering about it, और अगर आप परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, परमेश्वर आपके लिए वचन को भेजेंगे। But if you surrender your problem and sickness to God, He will send His word. जैसे उसने कहा भजन संगीता 107 पद का 20वें, As He has said in Psalm 107. मैं अपनी वचन को भेज कर तुम्हें चंगाई दूंगा, I will send my word and heal you. और Hallelujah. तुम्हें चंगाई मिलेगा। And you will receive healing. और भजन संगीता 107 पद का 19 से लेकर अगर पढ़ेंगे, And if we read the same Psalm 107 from 19 जहां पर onwards, उसने कहा, where it is written, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. बहुत ही सुंदर वचन उसने कहा है। beautiful word is अगर there. पढ़ेंगे, And in their troubles they called to the Lord. अगर आप समस्या में गिरे हुए हैं, When you are in your troubles, आप जब प्रॉब्लम में गिरे हुए when हैं, you are in problems, उसने कहा वे हर प्रकार के उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी, और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। and in their troubles they called out to the Lord. हम लोगों and की He सबसे saved बड़ी them. समस्या है कि हम लोग जब समस्या में गिरते हैं और समस्या को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं। Our greatest drawback is that when we fall in trouble, we try to increase it. हम लोग उस समस्या में से छुटकारा पाने के लिए छुटकारा दाता के पास नहीं आते But we हैं। don't go to the person who can take away all our problems. जितने जन and आप लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं या वचन सुन रहे हैं, all those people who are joining इफिसियों के पुस्तक now. अध्याय 9 पद का 6, Ephesians chapter 9 verse 6, जहां पर उसे कहा गया कि वो आश्चर्य मंत्री है, where He is the mighty counselor, वो चमत्कारी परमेश्वर the है, wonder worker, वो जीवित दाता परमेश्वर the है, living God, और जिसके बारे में कहा गया है वो मुक्तिदाता है। and He is our redeemer. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अपूर्व परमर्श दाता, He will be called a wonderful counselor, शक्तिशाली ईश्वर, Almighty God, शाश्वत पिता, eternal Father, शांति का राजा, and Prince
of और वो peace. दाऊद के सिंहासन पर विराज होकर सदा के लिए शांति, न्याय, धार्मिकता और साम्राज्य स्थापित करेगा। And he will rule as King David's successor, basing his power on right and justice. हर प्रकार की ताकत उसकी हाथों में है, He has every kind of power and might हर in his hand. प्रकार की शक्ति उसकी हाथों में है। He has all the power in इसीलिए his तो hand. प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 2 में कहा गया है कि वही अल्फा है और वही ओमेगा है। And that is why Revelation chapter 2 says God is Alpha and God is Omega. वही अल्फा है और वही ओमेगा है, He is Alpha and He is वही Omega. पहला है और वही अंत है। He is the beginning and the end. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जैसे उसने कहा प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहा गया है, जो प्रथम और अंतिम है। And verse 8 says that this message is from the one who is the first and who is the last. जैसे कहा गया प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। And that is what Revelation chapter 1 verse 8 says. I am the first and the last, who says the Lord God Almighty, who was, who is to come. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप उसकी आराधना करेंगे, If you worship Him, जो दीवार नहीं टूट रहा है, the wall that जो cannot, बंधन आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, the bondage of which जो you are रिलेशन not आप able to बना come नहीं पा रहे हैं, the relation that you are आप not अपनी able to अहंकार build, को छोड़ नहीं पा रहे you हैं, are not able to leave your आप pride, अपने जीवन की महिमा को छोड़ नहीं पा you रहे are हैं, not able to leave the आप glory अपना of your दुनिया life. बनाकर अपने आप को राजा समझ रहे And you हैं, have built a new world for yourself जिससे आप where you निकल are नहीं the पा king. रहे हैं, You are not able to come आप out of अपनी it. चिंताओं से निकल नहीं पा You रहे are not हैं, able to leave your आप thoughts. अपने आप को एक सितारा बना चुके हैं, Made yourself a star. और इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे हैं आप कहां पर खड़े हैं। And that is why you are not able to think your एक चीज जान लीजिए, जब आप आराधना करेंगे, your people, when you will worship Him, जब आप स्तुति करेंगे, when you will praise and हर glorify एक Him, बंधन आपका टूट जाएगा। every bondage will be broken. जैसे बहुत ही सुंदर गाना में हम लोग गाते हैं, अब हर बंधन टूट जाएगा यीशु तेरे आने A से। beautiful Hindi song says the same thing, that every कब? bondage जब आप will be स्तुतियों broken. के साथ, प्रशंसा के साथ उसकी आराधना And it करेंगे। will happen only when you will praise and glorify and worship Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. दानियल के पुस्तक अध्याय 3 देखिए, If we look at book of Daniel chapter आबेद 3, नोगो और सोदक को आग में फेंक दिया गया है, 3 friends of Daniel were और thrown वचन into कहता the है, fire. राजा जब देख रहा था, And the king, when the king was राजा looking जब at देख the- रहा था, when the king was तो उन looking लोगों into के the साथ fire, और एक व्यक्ति था। he could see not only 3 but 4 people inside the हालेलुया, fire. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. राजा जब देख रहा था, And when the king was looking into the fire furnace, राजा जब देखा कि उसके अंदर में और एक व्यक्ति थे, and he could see a 4th person inside that furnace, और वो लोग आराधना कर रहे and they थे। were all praising and worshipping और God. वचन कहता है, जो लोग उन लोगों को आग में फेंकने के लिए आए थे, And the word says the people who had come to throw these 3 friends of Daniel into the fire, वो लोग जल गए थे। they were burnt. मगर But प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. जो 3 जन आग में जल रहा था, But those 3 people who were inside the उन fire, लोगों को कुछ नहीं हुआ, nothing happened to them. क्योंकि यीशु उन लोगों को पकड़ कर था। Because God was holding them. वचन कहता है नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1, 2 और 3 में, And Isaiah chapter 43 verse 1 onwards says, आप कोई भी जगह से चलिए क्यों ना हो, you might walk through any difficulty and any place. परमेश्वर आपको उठाकर रखेगा। God will save and lift you up. याकूब का परमेश्वर आपको उठाकर रखेगा। God of Jacob will lift you up. उसने कहा, मैं तुझे उठाऊंगा, निकालूंगा, जय जयकार करेगा। And word says that I will deliver you and you will praise me. भजन संगीता 50 पद संख्या 15 में उसने कहा According to Psalm chapter 50 verse कि 50. संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा और तुम मेरी महिमा गाओगे। Times of trouble call to me and I will save you and you will glorify me. महिमा गाइए प्रभु की, स्तुति कीजिए प्रभु की कि संकट के समय वो आपको निकाले। Praise and glorify God so that when you are in trouble He will lift you आप up. जितनी उसकी धन्यवाद करेंगे, उतनी ही आपके जीवन से जो भी परेशानी है वो दूर होते जाएगी। And when you will keep thanking
asking him, whatever problems you have in your life will be removed far away from आप you. अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए द्वार द्वार घूम रहे हैं। And because of the different financial problems you क्या are आप प्रभु के दरवाजे पर आए हैं? asking for help. Have you आप come to अपनी God? बीमारी के लिए डॉक्टरों से डॉक्टर बदल रहे हैं। You are changing one doctor from another to cure क्या your आप sickness. यीशु के डॉक्टर के पास आए हैं? Have you come to the greatest physician, आप Jesus? जीवन के सोच के लिए दोस्तों को बुलाकर उस समाधान करने की कोशिश कर रहे For हैं। many problems that you have, you're calling out to your friends to help you. क्या आपने यीशु को बुलाया है? Have you called out to Jesus? उसने कहा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में, अगर मैं तुम में बना रहूं, And John chapter 15 verse 7 says, अगर मैं तुम में बना रहूं, if I remain in you, तो जान लो तुम्हारी आशीष उतरती आएगी then you will have blessings और coming तुम down भी in your मुझसे life. बने रहोगे And you will also और remain तुम in the ईश्वर light की of महिमा Jesus. देख पाओगे। Be able to see the glory उसने of कहा God. यदि तुम मुझसे मुझ में रहो और तुम मेरी शिक्षा में बनी रहती हो तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। Verse 7 says, if you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and it will be given to you. और उसने कहा मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। And verse 8 says, my father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become जब my माता मरियम के disciples. पास दूत आए When angel came to Mother Mary, जिसकी शादी नहीं हुई थी and she was not yet married at that और time, उस समय जो इन चीजों में रहते हैं उसे पत्थर मार दिया जाता था। and if in those days anyone was found to be in a wrong relationship, they were stoned to death. मगर उस समय दूत जब उससे कहा गया But when the angel told her, तब उसने कहा मेरे जीवन में प्रभु की महिमा पूरी हो। and she said, let the glory of God take place in her life. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और एक रहस्य के बात मैं आपको बताता हूँ, I'm going to tell you another secret today. एक रहस्य के बात मैं आप लोगों को I'm going बताता to tell हूँ। you another secret लूकस के today. सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 Luke chapter 1 verse 38 जहाँ पर कहा कि तुम पवित्र आत्मा की ईश्वर की महिमा देख पाओगे। says that you will be able to see God's glory. आप जानते हैं जिस समय माता मरियम को ये पता चला कि वो भी गर्भवती हुआ है, At that time when Mother Mary came to know that अगर she was अध्याय 1 और pregnant, अध्याय 2 अच्छे तरह से देखेंगे, if we read chapter 1 and 2 of Gospel, माता मरियम उसी समय उसके बहन एलिजाबेथ के पास पहुंच गई and she went to the house of her sister और Elizabeth, प्रभु की महिमा करने लगी। and she started glorifying और God. एलिजाबेथ भी प्रभु की महिमा करने लगी कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर में आई है। And Elizabeth also started praising God because she had the mother of और आराधना God की in the बहुत ही house. सुंदर प्रार्थना है कि मेरा प्राण परमेश्वर की महिमा गाए। Verse 46 onwards, a beautiful hymn of praises there. My heart praises the Lord. मेरे मन परमेश्वर की महिमा गाए। My heart praises the आप Lord. जानते हैं इसीलिए माता मरियम आराधना कर रही थी कि उस मुश्किल के घड़ी में आराधना ही परमेश्वर की शक्ति को बना सकता है। Because at that time of difficulty, she was praising and glorifying God Praise you, Jesus. so that she could have a solution to it. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग जब आराधना करते हैं, When we praise Him, worship आपकी Him, आराधना प्रभु चाहते हैं। this is what God wants. बहुत from सारे our जन life. प्रभु के चरणों में आते हैं मगर अपने आप को छिपा कर रखता है। Many people come to God but keep themselves hidden. अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दीजिए। Place your life before उसे God. सब कुछ पता है। He knows everything. आप कौन है उसे पता है। He knows who you आपका are. क्या जरूरत है उसे पता है। He knows all your needs. जैसे वचन कहता है तेरे मांगने से पहले, Because the word says even before you are. आइज़ाया नबी ईसाइस के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24 में उसने कहा तेरे मांगने से पहले। And Isaiah chapter 65 verse 24 says, even before you ask, हमारे मांगने से पहले उसे पता है क्या मुझे He चाहिए knows what we are in और need वो of. देने के लिए तैयार है। And He's ready to give it to जैसे us. उसने कहा वचन में एक पिता जैसे प्यार करता है, And the word says, just as the उसने Father हम loves लोगों His को उस children, तरह से प्यार किया He है। has loved us in the same इसीलिए manner. तो अपने पुत्र को बलिदान के स्वरूप चढ़ाया And है that is why He sacrificed His only कि Son उसके for us, द्वारा हमें और आपको जीवन प्राप्त हो। so that we could receive life through Him. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
जब भी हम लोग आराधना करते हैं, whenever we worship and praise प्रभु God, की कृपा देख पाते हैं, we are able to see His प्रभु mercy. की आशीष देख पाते We are हैं, able to see His प्रभु की blessing. चिन्ह और चमत्कार We देख are पाते able हैं, to see His miracles प्रभु and की wonders. ताकत को महसूस कर We are पाते able हैं। to experience His power. प्रेरितों के सुसमाचार, प्रेरितों के पत्र अध्याय 16, Acts chapter 16. वहां पर पौल और सीलास को जेल पर बंदी कर दिया गया Paul है and Silas were imprisoned, और दोनों ही जेल में बंदी है, and they were in the prison. मगर वो लोग क्या करेंगे उन लोगों को पता नहीं है। They didn't know what to do, मगर वो लोग ईश्वर की स्रोत गीत और आराधना कर रहा था। but they kept on praising and singing hymns to God. वो लोग ईश्वर की आराधना कर रहे थे, They were singing and praising hymns वो to लोग God. ईश्वर की आराधना कर रहे थे, They were worshiping God. वो लोग परमेश्वर की महिमा गा रहे They थे। were glorifying और God. वचन कहता है अचानक दूत आया, And the word says, suddenly an दरवाजा angel खुल came, गया, and the door was opened, सभी के हाथों के बंधन टूट गए। and all the bondages were प्रिय जन broken. अच्छे तरह से देखिए, सिर्फ पौल और सीलस के नहीं, वहां पर जितनी भी जन थे सभी के हाथों के बंधन खुल गए थे। And the chains of all the prisoners were broken. बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना के द्वारा। It is because of your prayer and your जो लोग भी worship. ऑनलाइन में है, जो लोग लिख रहे हैं, अच्छे तरह से जान लीजिए, आपकी प्रार्थना के और आराधना के द्वारा Those who are joined to me right now, it is because of your worship and your prayer. आपके परिवार की बंधन टूट जाएगी, All the bondages in your family will be आपके broken. आसपास के पड़ोसी के बंधन टूट जाएंगे, The bondages of your neighbors will be broken. आपकी मांग तो पूरा होगा ही, You will get what you और are आपके in need आसपास of. में जितने जन आपसे जुड़े रहेंगे उसे भी चंगाई मिलेगा और उसे भी मुक्ति मिलेगी। And all the people who are joined to you, associated with you, will be blessed and यही है परमेश्वर की आराधना की ताकत, And this is the power of worship. और ये ताकत बहुत जरूरी है, And it is very important. उसकी आराधना होना बहुत जरूरी है। important that जिस we समय आप worship उसकी Him. आराधना करते The हैं, moment you worship Him, आप प्रभु की कृपा अपने जीवन में देख सकते हैं। you are able to see His mercy in your हम life. और आप सभी कोई पापी है We are प्रियजन, all sinners, my dear people. हम और आप पापों में डूबे हुए We हैं। are engrossed in our sins. इसलिए तो गाना में कहते हैं मैं पापों में डूबा था, And that is why a song says we are all मगर engrossed in उसने our वो sins. आया और आके हमें और आपको बचाया। He came and saved each and every one आज of क्या us. आपका परिवार तैयार है आराधना करने Is के लिए? your family ready to worship क्या God? आज आपके परिवार तैयार है प्रभु की आराधना करने के Is your लिए? family ready to worship God क्या today? आपके परिवार में प्रभु की आराधना होना बहुत जरूरी है? Are you ready to worship Him from your जब भी आप family? आराधना करते हैं, Whenever you worship Him, आपकी आराधना के द्वारा, through your worship, आपकी आराधना के द्वारा through your worship, परमेश्वर की चिन्ह और चमत्कार, the miracles of Jesus, परमेश्वर की शक्ति the wonders and power of आपके तो Jesus जीवन में उतर कर आती है, descends upon your life, साथ में आपके परिवार के जीवन में भी as उतर well कर as in आती your है। family. इसीलिए तो जोशुआ का ग्रंथ में कहा गया है That is why the book of Joshua says, कि मैं और मेरा परिवार प्रभु का महिमा और प्रभु की पूजा करूंगा। as for me and my family, we will all serve the Lord. अध्याय 24 में उसने कहा Chapter 24, कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की, पढ़ते हैं कहाँ लिखा हुआ verse है, 15 says, 15 पद में लिखा हुआ है कि मैं और मेरा परिवार, as for me and my family, मैं और मेरा as परिवार for me and my family, प्रभु की आराधना करूंगा। we will serve the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खत्म करने से पहले एक वचन जो मैं आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। I want to share another verse with all of अगर you. आप तैयार है आराधना करने के लिए, If you are ready to worship Him, आप भी दूत को देख पाएंगे you'll be able to see angels. और आपका दूत आपको रक्षा करने के लिए तैयार That रहेंगे। angel will be ready to protect you. आपकी दूत आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में लेकर जाने के लिए तैयार And रहेंगे। the angel will be ready to take all your prayers to the feet of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपसे भी बातें करेंगे। And God will speak to you. प्रभु कहेंगे God will say, जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे whichever place you walk into, मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा। I will keep giving those places. जोशुआ का to you. ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 से लेकर 5 तक If we read Joshua chapter 1 verse अच्छे 3, तरह से पढ़िए। let us all read that. हम लोग भी verse. एक साथ पढ़ते हैं, जहाँ पर उसने कहा जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, Whichever place you will set your foot on, I'm going to give those to you. पर तुम जैसे कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की थी,
just as I had promised Moses. उजाड़ खंड और लेबनन से लेकर महानदी फरात तक हिस्सियों के सारा देश जो पश्चिम महासमुद्र के फैला हुआ है तुम्हारा देश होगा। 5 पद पूछी, जब तक तुम जीवित रहोगे, As long as you are alive, जब तक आप आराधना करेंगे, as long as you जब तक worship आप God, जीवित रहेंगे, as long as you live in कोई भी the land तुम्हारा of the living, सामने नहीं टिक पाएगा। no one will be able to stand in मैं नहीं front बता of रहा हूँ, प्रभु बोल रहा है। you. This is what God कोई said. भी वायरस आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। No virus will be able to कोई भी बीमारी आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। sickness will be able कोई to भी stand प्रॉब्लम आपके सामने में टिक नहीं पाएगा। No problem will be able to आएगा stand. जरूर। They might come in your यीशु life. नाजरित नाम से दूर हो जाएगा। In the name of Jesus of Nazareth, it will जैसे मैं मूसा के साथ था, be just as I was with आज प्रभु Moses. आपको भी कह रहा है, This is what God is telling you. वैसे my ही people. तुम्हारे साथ भी रहूंगा। I will be with you all. प्रभु कह रहा है, This is what मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। I will keep helping you. हालेलुया। और Hallelujah. तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। I will never leave you. दृढ़ बने रहो Be determined और and धाड़स confident. रखो। Be confident. दृढ़ बने रहो Be determined. और धाड़स रखो। Be confident. आइए उसकी आराधना के लिए दृढ़ बने रहते हैं। Let us be determined in His क्या आप worship. तैयार है आराधना करने के Are you लिए? ready to worship Him? क्या आपका समय आपका टीवी ले रहा है? Are you giving your time to the क्या आपका television? मोबाइल फोन आपका समय ले रहा Are है? you giving your time to your mobile phone? बदल दीजिए आराधना में। Change it. व्यवहार कीजिए। व्हाट्सएप यूट्यूब में हम लोगों की कितनी सारे वचन है, प्रभु का दास दासी लोग, प्रभु के प्रीचर लोग कितने सारे प्रभु के वचन दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। Use the social media to worship and praise Him through the different YouTube videos that are put up by the different preachers. क्या आपके टीवी सिर्फ हिंदी सीरियल और मूवी देखने में व्यस्त रहता है? Or do you keep watching the TV only for कुछ देर serials के लिए and प्रभु की movies? आराधना के लिए भी व्यवहार कीजिए, Use it for God's worship. क्योंकि आप जुड़ जाएंगे। Because you will be united. जानते हैं हम लोग सबसे ज्यादा शैतान से जुड़ जाते हैं, And we keep being united. इसीलिए तो with टीवी Satan. मोबाइल हम लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ जाता है। And that is why we are more inclined to our TV. आप जब than प्रभु our के लिए ये सब व्यवहार करेंगे, When you will start using this आप फिर से devices जुड़ for the जाएंगे। Lord, you will be united. आइए with उसकी me. आराधना करते हैं। Let us worship Him. जितने भी जन जुड़े हुए हैं सभी की प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। Surrender all the prayers of the people joined to us. at the अनुरोध feet of करते हैं Jesus. आप अपने पेज को शेयर कीजिए, आपके जितने भी आपके जितने भी कांटेक्ट है उन लोगों में, We request you to share this service with all the कि वो people लोग भी प्रभु के वचन में जुड़ पाए। so that they might be united to परमेश्वर का धन्यवाद हो। God. All praise and glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए उसकी आराधना करते हैं।